یہ پروجیکٹ کوئٹہ سیف سٹی میں 255 اہم مقامات پر 1400 سے زیادہ آئی پی کیمروں پر مشتمل ہے، جس میں جدید ترین نگرانی کا طریقہ کار شامل ہے۔ اس طرح چاغی سے متصل پاک افغان سرحدی علاقہ نور وہاب سے افغانستان جانے اور آنے والے لوگوں کے لیے پاسپورٹ ویزا 5 جنوری سے لازم قرار دیا گیا۔ بلوچستان میں الحمدللہ سبی اور ہرنائی ریلوے لائن بحال ہو گئی ہے۔ پہاڑوں پر جانے کی دھمکیاں دیتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ وہ پہاڑوں پر چڑھ جائیں یا غاروں میں چھپ جائیں، ہم ہر ایک کا بندوبست کرنا جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان کے عوام نے بلوچستان کے شہداء کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ غیر ملکی ایجنڈے کو آگے بڑھانے والے نامنہاد دانشوروں کو ان کے گھٹیا پروپیگنڈے کو عوام نے سخت رد عمل کے بعد ریجیکٹ کیا ہے، اور اب ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی۔ پاکستان کے پرچم تلے ہم ہر ناراض پاکستانی سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسلام آباد میں بھی ہم نے یہ پیشکش کی تھی، لیکن اس کا کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ ریاست نے پاکستان کے پرچم کے سربلندی کے لیے ہر مہم جوئی کا سامنا جرأت اور بہادری سے کیا ہے۔ پاکستان کو اس کے اصولی موقف سے کسی قسم کی دھمکیوں اور دہشت گردی کے کارروائیوں سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ جو لوگ پہاڑوں پر جانے کی دھمکیاں دیتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ وہ پہاڑوں پر چڑھ جائیں یا غاروں میں چھپ جائیں، ہم ہر ایک کا بندوبست کرنا جانتے ہیں۔ دھمکیاں دینے والے عوام کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں۔ ان کے قول و فعل کا تضاد سب کے سامنے ہے۔ ایک طرف وہ حکومتی عہدوں سے بھی چمٹے رہنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے پہاڑوں پر چڑھنے کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ بلوچستان میں الحمدللہ سبی اور ہرنائی ریلوے لائن بحال ہو گئی ہے۔ بلوچستان کے اضلاع سبی اور ہرنائی کے درمیان ریلوے سیکشن جو 17 سال بعد اکتوبر 2023 میں بحال ہو گیا تھا، اسے مقامی افراد نے خوشحالی کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔ یہ ٹریک 2006 میں دہشت گردوں نے اڑایا تھا۔ ٹرین بندش سے جہاں مقامی لوگوں کو سماجی، معاشی اور دیگر مسائل کا سامنا تھا، وہیں مذہبی تہواروں، ثقافتی اجتماعات سمیت دیگر رابطوں میں بھی مشکلات پیدا ہوئیں۔ پاک فوج اور ایف سی نارتھ نے ریلوے انجینئرز اور ایل این سی کے عملے کی حفاظت کے لیے فرائض یہاں پہ سر انجام دیے، اور یوں یہ ٹرین کی بحالی ایک قلیل مدت میں مکمل کی گئی، جو بلوچستان کی ترقی کے لیے بہت خوش آئند ہے۔ اس کے ساتھ حکومت نے ہمسایہ ملک افغانستان کے ساتھ تمام داخلی اور خارجی پوائنٹس پر 1 ڈاکومنٹ رجیم نافذ العمل کر دیا ہے۔ اس طرح چاغی سے متصل پاک افغان سرحدی علاقہ نور وہاب سے افغانستان جانے اور آنے والے لوگوں کے لیے پاسپورٹ ویزا 5 جنوری سے لازم قرار دیا گیا۔ 31 جنوری 2024 تک معمول کے مطابق کاروباری حضرات کراسنگ کا استعمال جاری رکھ سکتے ہیں، اور افغانستان میں شناختی کارڈ کے ذریعے جانے والے پاکستانی اپنے ملک واپس داخل ہو سکتے ہیں۔ اس سے قبل نور وہاب گیٹ سے شناختی کارڈ کے ذریعے افغانستان آنا جانا ہوتا رہا ہے، اب اس کی اجازت نہیں ہوگی۔
तोरखम बॉर्डर पर अफगान ड्राइवर्स के लिए पासपोर्ट और वीज़ा लाजमी करार दिया गया है। पाक अफगान सरहद चमन पर भी पहले ही से ये लाजमी करार दिया गया है। इसके साथ बलूचिस्तान में कोयटा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया है। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान खान डोमकी की क़यादत में निगरान सूबाई हुकूमत का कोयटा के आवाम के लिए एक और मिसाली तोहफ़ा है। स्टेट ऑफ द आर्ट कोयटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट कोयटा के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कलीदी किरदार अदा करेगा। ये प्रोजेक्ट कोयटा सेफ सिटी में 255 अहम मकामात पर 1400 से ज़्यादा IP कैमरों पर मुश्तमिल है, जिसमें जदीद तरीन निगरानी का तरीक़ाकार शामिल है। ये न सिर्फ इलाकाई निगरानी करेगा बल्कि शहर में अमन और अमान बरकरार रखने में कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी मदद करेगा। बलूचिस्तान के वज़ीर आला अनकरीब इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। और बलूचिस्तान में क्रिकेट के हवाले से नौजवान टैलेंट में किसी से भी कम नहीं है, चाहे वो तालीम का शोबा हो या खेल के मैदान। यहाँ के नौजवानों में बेपनाह सलाहियतें हैं, लेकिन अरसाए दराज से बलूचिस्तान के क्रिकेट के खिलाड़ियों को मौका फराहम नहीं किए जा रहे हैं। कोयटा के नाम पर बनने वाली कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी यहाँ के खिलाड़ियों को हमेशा नज़रअंदाज किया है। कोयटा ग्लैडिएटर्स का ये कहना है कि यहाँ का मौसम 6 महीने बहुत सर्द होता है, जिसकी वजह से टैलेंट हंट प्रोग्राम नहीं करवा सकते और बलूचिस्तान से टैलेंट सामने नहीं आता। ये हक़ाइक़ के बिल्कुल बरअक्स है। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा में भी 6 महीने मौसम के बायस क्रिकेट नहीं होती। कोयटा ग्लैडिएटर्स बेबुनियाद एतराज़ात और वजूहात पेश करके यहाँ के नौजवान खिलाड़ियों को मौका फराहम नहीं करना चाहता। इस नाइंसाफ़ी का हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे और कोयटा ग्लैडिएटर को कोयटा और बलूचिस्तान के नाम पे कारोबार नहीं करने देंगे। शुक्रिया। जान साहब, जमीयत-उल-इस्लाम के जो सेनेटर हैं मुल्तान साहब, उन्होंने काफ़ी एतराज़ात आप पर उठाए कि आपने मारक बलूच के कैंप का विजिट नहीं किया, तो उसको क्या कहेंगे? और दूसरा ये कि गवर्नर बलूचिस्तान ने भी एक वादा किया था कि अगर मसाइल हल नहीं हुए तो वो इस्तीफ़ा देंगे। अब तक आईनी वजह से इस्तीफ़ा नहीं आया, उस पर आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? सेनेटर मुश्ताक साहब एक मोहतरम शख्सियत हैं, लेकिन बलूचिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ का उनको कुछ पता नहीं। गवर्नर बलूचिस्तान साहब मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और वो एक किरदार है बलूचिस्तान में। ये सवाल तो उनसे बनता है। अच्छा जान साहब, आप अभी जो आप मतलब देख रहे हैं चमन बॉर्डर आपने बंद कर दिया, ईरान ने अपने बॉर्डर भी बंद कर दिए, बेचारा जो है मुकम्मल बंद हो गया, पूरा लाख हो चुका है पाकिस्तान जो है तमाम सरहदों के तमाम ममालिक से। तो ये क्या करने जा रहे हैं आप लोग, कुछ है समझते हैं? बलूचिस्तान अफ़गानिस्तान से मुतसिल तमाम एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट्स पे 1 डॉक्यूमेंट का रिजीम एक फ़ैसला है जो हर सूरत में हर कुर्बानी के नतीजे में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। हमने कई सालों से ये इग्नोर किया है। अफ़गानिस्तान से मुसलसल दहशतगर्दी के वाक़यात बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। इसका तदारुक करने के लिए हमने ये बॉर्डर्स पे 1 डॉक्यूमेंट रिजीम किया है, ताकि हमें पता हो कि हज़ारों लोग जो दिन को आते हैं और मुख्तलिफ पॉइंट्स पे वापस जाते हैं, उनका डेटा हमारे पास हो। लिहाजा नेशनल सिक्योरिटी पे पाकिस्तान की सालमियत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। जहाँ तक आम लोगों के मसाइल का ताल्लुक है, बिलखसूस चमन के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे एक पैकेज का ऐलान किया है। अभी तक तकरीबन 1700 के करीब
जो लोकल जवान हैं उनको हमने वज़ाइफ तकसीम किए हैं और ये तकरीबन 6 महीने तक हम करते रहेंगे और इनका सिलसिला हम बढ़ाएंगे और टोटल कवरेज तकरीबन हम इंशाअल्लाह 20,000 जवानों तक पहुंचाएंगे। ईरान के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी ईरान में जो वाक़यात जिसने भी किए वो पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरक दुश्मन है। दोनों ममालिक मिल के दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस पूरे रीजन को स्टेबल करने के लिए काम माजी में भी करते रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। जान साहब ये बताइएगा, कोयटा में मौसम सरमा जैसे ही शुरू हो जाता है गैस प्रेशर में जो कमी है वो शुरू हो जाती है, जिससे शहरी काफ़ी परेशान है। आज भी देखा धरना जारी था यहाँ पे गैस ऑफिस में। देखिए, बदकिस्मती से ये सिर्फ कोयटा में भी नहीं होता, बलूचिस्तान के दिगर इलाकों में भी और अभी पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी ये मसला हुआ है। गैस अथॉरिटीज़ के साथ सूबाई गवर्नमेंट इसको सेंसिटाइज़ करेगी। कम अज़ कम जो बलूचिस्तान की फ्रीजिंग एरियाज़ हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत गिर जाता है वहाँ पे इसकी नॉर्मल सप्लाई को यकीनी बनाएंगे इंशाल्लाह।